A very good morning to all of you. Now today I am going to start the next chapter, that is organism and population. So this is a part of our ecology syllabus. So what is ecology first? What do you mean by the term ecology? So ecology is a branch of science that deals with the interactions among the organisms and between the organisms and its physical और abiotic environment. ये वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है इंटरेक्शन, किसकी इंटरेक्शन, दो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स में आपस के बीच में, या ऑर्गेनिज्म की उसके एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में, या आप कह सकते हो कि उसके फिजिकल एनवायरनमेंट में. सो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स and between the organisms and the physical environment is known as ecology. Now next is ecology levels of organizational level of ecology. Organizational level of ecology. So we will start from the lower level. So organisms जो है living component of the environment at a individual level is known as organism. Either वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, एनीथिंग. सो लिविंग कंपोनेंट जो भी इन्वायरमेंट का है at an individual level is known as organism. So this is a very first level of the organizational level of ecology. Then comes this ecology at the organism level जो होता है organismic level पे, इसे हम physiological ecology कहते हैं, because ये different organisms के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने environment के साथ adapt करते हैं. So this is the smallest level of the ecological hierarchy. Next is the population. After the organism there comes the population. Now what is population? It is defined as a sum total of all the individuals of a species in a particular geographical area. मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की ही बात कर रहे हैं, तो जितने भी ह्यूमन बींग की जो स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिज्म है, सम टोटल उन पर्टिकुलर ह्यूमन बींग स्पीशीज़ की इंडिविजुअल्स का, वो पूरी की पूरी जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द population. After population the next level is the species. Now what is the species? The species are the group of individuals of one or more population. Group of individuals हैं एक या एक से ज़्यादा population के, जो आपस में resemble करते हैं and can interbreed among themselves. जैसे हमारे पास dogs की बहुत सारी species होती हैं. So they are the group of individuals, वन और मोर पॉपुलेशंस जो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं एंड दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स. सो दिस इज स्पीशीज. आफ्टर द स्पीशीज द नेक्स्ट लेवल इज द बायोटिक कम्युनिटी. नाउ व्हाट इज दिस बायोटिक कम्युनिटी? जो असेंबलेज है, जब हम पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज़ की उन्हें हम कंबाइन कर देते हैं इन एन एरिया और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डैट इज़ नोन एज बायोटिक कम्युनिटी. जब हम डिफरेंट पॉपुलेशंस को, डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उन्हें हम कंबाइन करते हैं, असेंबल करते हैं, देन दे इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द बायोटिक कम्युनिटी. एंड बायोटिक कम्युनिटी इज़ ऑफ three types. One is plant community, another one is animal community, and the third one is microbial community. So three types of communities are there in the biotic community.
One is the plant community, another one is the animal community, and third one is the microbial community. So next अगर हम बात करें after this biotic community, there comes the next stage, that is the ecosystem. Now what is the ecosystem? Sum total of the biotic and abiotic components of a particular geographical area that are integrated through the exchange of energy, recycling of nutrients are collectively called the ecosystem. जब पूरा टोटल कोई भी लिविंग कंपोनेंट्स का और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स का, जिसमें हमारे पास सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, तो वो कलेक्टिवली जो नोन उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को कहते हैं इकोसिस्टम. After the ecosystem we are having the biome. Now what is biome? Biome क्या है? ये large unit है environment का that consists of a major vegetation type and associated with the fauna in a specific climatic zone. So it's a large unit of environment that consists of the major vegetation type, उस particular एरिया में किस तरह की वेजिटेशन है, एंड ऑल द एसोसिएटेड फॉना. फॉना मीन्स डैट इज़ कंसिडर्ड विद द, डैट इज़ रिलेटेड विद द प्लांट्स एंड ऑल इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में होते हैं, डैट इज़ नोन एज द बायोम. सो व्हाट इज आफ्टर दिस बायोम, द लास्ट वन इज़ द बायोस्फीयर. नाउ व्हाट इज़ बायोस्फीयर? Biosphere is the combination or the collection of all the ecosystems of the world. वर्ल्ड में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, अगर हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं, उन्हें अगर हम कलेक्टिवली उनके बारे में वी हैव टू टॉक, देन वी यूज़ अ सिंगल टर्म, दैट इज़ द बायोस्फीयर. वन मोर अनदर टर्म इज़ द निच. व्हाट इज़ दिस? So the ecological niche of an organism represents as the range of a condition that it can tolerate, the resources it utilizes and its functional role in the ecological system. तो हर एक स्पीशीज़ की जो अपनी एक डिस्टिंक्ट निच होती है, एंड no two species occupy the same niche. So ecological niche अगर हम बात करें तो ये वो रेंज है कंडीशंस की जो एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है डैट कैन टॉलरेट द रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकते हैं, और उनका जो फंक्शनल रोल है किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में, डैट इज़ नोन एज अ निच. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एनवायरनमेंट. Ecology part of the class 12th section is very interesting and more scoring than any other part. So next is environment. It is quite easy topics are there in the ecology section and they are quite scoring. So next is environment. Environment is referred to as the sum total of the physical and the biotic conditions which influence the organism in the term of survival and the reproduction. Environment वो चीज़ होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज़म को अगर हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो पर्टिकुलरली उस एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके. तो इसमें क्या आता है, जितनी भी फिज़िकल एंड बायोटिक कंडीशंस हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं उस ऑर्गेनिज़म को ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके. सो एज़ यू ऑल नो डिफरेंट सीजन्स जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, आप 4th क्लास से 3rd क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एंड सेकेंड द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. तो इन दो रीजन्स की वजह से जो हमारे सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते रहते हैं. सो मेजर बायोम्स जो है हमारे वर्ल्ड के डैट आर desert, grasslands, rainforest and the tundra regions.
सो दीज आर द 4 बायोम्स जिसमें हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, मेजर बायोम्स हैं जिसमें हमारा जो वर्ल्ड है that is divided, it is divided into 4 parts. One is the desert, grasslands, rainforest and the tundras. So formation जो है different biomes की, that is due to the annual variations in the intensity and the duration of temperature. ये क्यों है? जो भी variations होते हैं intensity में, duration और temperature में, जो एनुअल वेरिएशंस होते हैं प्रेसिपिटेशन में, तो जितनी भी ये वेरिएशंस हैं जब ये कंबाइन होती हैं they form these 4 major biomes, that is desert, rainforest and the tundras. So regional और जो local variations हैं that led to the formation of the different habitats. जो ये हमारे पास वेरिएशंस आती हैं, चाहे वो रीजनल वेरिएशंस है चाहे वो लोकल वेरिएशंस है, ड्यू टू दिस जो ऑर्गेनिज्म है उनके डिफरेंट हैबिटेट्स वहाँ पे बनते हैं. जैसे आपको पता है कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ज़ीरोफिटिक हैबिटेट में. जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं दे आर फाउंड इन हाइड्रोफिटिक हैबिटेट. सो these depends upon the regional and the local variations that leads to the formation of the different habitats. So that's all about this topic for today, and in the next topic we will discuss the next in the next lecture we will discuss the next topic. Thank you students and have a nice day.